आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉमन पोटेंशियल and loss of energy in sharing charge. Okay, so let us start now. Energy store in a capacitor. This is capacitor which is system of two conductors carrying current plus Q and minus Q. Capacitor is a system of two conductors carrying charge plus Q and minus Q. If C is capacitance of this capacitor, therefore electric potential B equal to Q by C, and a small amount of work done, a small amount of work done in given charge dq to the capacitor dw equal to q by c into dq. Total amount of work done in giving charge q to the condenser oblique capacitor. Total work done in given charge q to the capacitor W equal to integration 0 to q limit q by c into dq. इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जब लिमिट पुटअप करेंगे तो वर्क डन W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा. दिस वर्क डन stored in form of potential energy in this capacitor. This work is stored in form of potential energy in capacitor. Therefore, W equal to U equal to Q square by 2C. Because Q equal to CV, Q का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो U equal to half CB square. This is the second formula of energy stored in a capacitor. This is written as U equal to half CB into B. ये CB हो गया. CB is replaced to Q. Therefore, U equal to half Q into V. This is the third formula of energy stored in a capacitor.
इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, energy stored in combination of capacitors. First is series combination. First is series combination. In series combination of capacitors, 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, digit, so on. Okay. If we multiply by Q square by 2 in both sides, so this step is written as Q square by 2C equal to Q square by 2C1 plus Q square by 2C2 plus Q square by 2C3 plus digit. This is potential energy of series combination. U equal to, ये वाले हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर कनेक्ट है उनमें से पहले वाले का, एंड प्लस सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी प्लस थर्ड प्लस डिजिट ऐसे ही आगे. ओके, एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. In parallel combination, C equal to C1 plus C2 plus C3 plus digit. If we multiplied by half V square, where V stand for potential, so this is written as half CV square equal to half C1 V square plus half C2 V square plus half C3 V square plus digit. This is the formula of potential energy. U equal to U1 plus U2 plus U3 plus digit. Same potential energy in both combination of capacitors. ओके, अच्छे से नोट करें. इसके बाद हम पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी. Energy density of parallel plate capacitor. It is defined as the ratio of potential energy per unit volume of parallel plate capacitor. It is denoted by small u. It is denoted by small u. Therefore,
स्मॉल u इक्वल टू एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, ये हो जाएगा। बिकॉज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड पोटेंशियल V इक्वल टू ए इंटू डी। इन दोनों का वैल्यू उठा के इसमें पुट करिए। U इक्वल टू हाफ C इज रिप्लेस टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। इससे ये वाला ए, डी स्क्वायर से ये दोनों डी कैंसिल आउट। U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छे से नोट करें, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे और लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। ओके, कॉमन पोटेंशियल। सपोज टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 एंड पोटेंशियल V1 V2। अगर दो कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंसेस C1 और C2 है, पोटेंशियल V1 और V2 है और दोनों सेपरेट रखे हुए हैं, तो उनका टोटल चार्ज कितना होगा। और अगर उन्हें कनेक्ट करना तो वो चार्ज शेयर करेंगे, तो शेयरिंग के बाद चार्ज कितना होगा। ओके, ये निकालेंगे। अगर हमें ये मिल जाएगा चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड चार्ज आफ्टर शेयरिंग, तो हम कॉमन पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। सपोज टू capacitors of capacitances C1 and C2, potential V1 and V2. Therefore, total charge V for sharing Q total C1 V1 फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज प्लस C2 V2 सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज। इफ both are connected to, both means both capacitor are connected to each other and common potential becomes V. Therefore, total charge आफ्टर शेयरिंग, अगर ये हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे से चार्ज शेयर करेंगे, तो शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q टोटल इक्वल टू C1V प्लस C2V, बिकॉज V इज कॉमन पोटेंशियल फॉर बोथ कैपेसिटर्स। Q टोटल C1 प्लस C2 इंटू V। बट चार्ज कंजर्व होता है, इट मीन्स फाइनल चार्ज मीन्स टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल टू टोटल चार्ज V फॉर शेयरिंग। तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2
इंटू वी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ओके, इसको अच्छे से एक बार नोट करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज। सपोज two capacitors of capacitances C1 and C2, potential V1 and V2, potential V1 and V2. Therefore, total energy V for sharing charge, total energy V for sharing चार्ज U1 मान लेते हैं इसको, इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ B इज कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग चार्ज, if B is common potential after sharing charge, therefore total energy after शेयरिंग चार्ज U2 इक्वल टू हाफ। यहाँ पे V1 और V2 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? V, बिकॉज B इज कॉमन पोटेंशियल फॉर बोथ कैपेसिटर्स। अगर यहाँ पे B कॉमन करेंगे, वो B पुट करेंगे तो B कॉमन हो जाएगा। देखिए हाफ C1B स्क्वायर प्लस C2B स्क्वायर, तो दोनों जगह से B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, where V is common potential. Okay, तो loss of energy in sharing charge delta U equal to U1 minus U2। U क्या है? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, वेयर V इज कॉमन पोटेंशियल बिकॉज V इक्वल टू क्या होता है? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा U इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेता हूं, 1/2 कॉमन लिया,
C1B1 स्क्वायर प्लस C2B2 स्क्वायर, C1B1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 माइनस, यहां से लिखता हूं माइनस C1 प्लस C2, और यहां पे क्या हो जाएगा C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर, C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये इससे ये कैंसिल आउट। इसको एक बार अच्छे से नोट करिए, इधर करते हैं। क्या लिखा था हमने, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, यहां पे ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया C1V1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये इसको रफ कर देते हैं। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 का करें पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C2 का करिए C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर प्लस C2 B2 स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल के माइनस का मल्टीप्लाई करिए, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 टोटल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर कैंसिल आउट। ये उसके बाद C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट। डेल्टा U इक्वल टू 1/2, देखना C1 C2 C1 C2 C1 C2 हर टर्म से कॉमन है C1 और C2, अंदर क्या बचेगा B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और माइनस का 2B1 B2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर ऑफ B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाई 2 C1 plus C2. This is the loss of energy in sharing charge between capacitors. Okay? ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।